कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती से सामने आने वाला ये वाकया न सिर्फ पुलिस के किरदार पर सवालिया निशान है बल्कि डेमोक्रेसी सिस्टम में रूह को भी झंझोड़ देता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब कर्नाटक में भी पुलिस के जंगल राज की झलक दिखाई देने लगी है। ये वाकया एक आम ड्राइवर का है जिसका नाम सैयद बादशाह है, जिसे दिन दहाड़े सादा वर्दी में मलबूस पुलिस अहलकारों ने किडनैप किया। न कोई नोटिस, न गिरफ्तारी वारंट, न मुकामी पुलिस को इत्तला और न ही घर वालों की इसकी खबर। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सैयद बादशाह का भाई एक मुकदमे में मुलजिम है और वो 4 माह से लापता है। मगर सवाल यह है कि किसी के जुर्म की सज़ा कोई और कैसे भुगत सकता है। बादशाह को ज़बरदस्ती जीप में बिठाकर शिमोगा से चित्रदुर्गा ले जाया गया। वहाँ एक जंगल में ले जाकर इसे बरहना किया गया, डंडों और लातों से मारा गया और गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उधर भद्रावती में बादशाह के घर वालों को जब इत्तला मिली कि इसे अगवा कर लिया गया तो वो फ़ौरन फसमने पुलिस थाने पहुंचे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो की गई, मगर पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ इंतज़ार करने का मशवरा दिया। हैरानकुन बात यह है कि सड़क पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों में अगवा की पूरी वारदात कैद हो चुकी थी। जब ये सबूत पुलिस को दिए गए तो जवाब मिला, ये पुलिस की तहवील में है, इसलिए हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। कुछ ही देर बाद चित्रदुर्गा के बड़ावने पुलिस थाने से फ़ोन आया कि बादशाह यहाँ मौजूद है, आकर ले जाएं। बादशाह के भाई और दोस्त वहाँ पहुँचे तो बादशाह शदीद ज़ख्मी हालत में था। आज सैयद बादशाह अस्पताल में ज़ेर इलाज है, मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि अब तक न तो एफआईआर दर्ज हुई, न किसी पुलिस अहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पुलिस कानून से बालातर है? क्या डीजीपी सलीम अहमद की हिदायत पर इस तरह के गैर कानूनी तरीक़े अपनाए जा रहे हैं? और क्या कर्नाटक को भी उत्तर प्रदेश बनाने की तैयारी हो रही है? ये सवालात सिर्फ सैयद बादशाह के नहीं बल्कि हर उस शहरी के हैं जो कानून, कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस पर यकीन रखता है। अब इन सवालात के जवाब देना होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ. ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಡೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನಿಂದು, ಮತ್ತು ನೀನು ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಸರ್, ನಡೀರಿ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ದಾಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಗಾಡಿ. ಸರಿ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಂತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಸರ್, ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್. ನನಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ. ನನಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದು ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರು, ನನಗೆ 24 ನಂಬರ್ ಬರ್ತವೆ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಅದು ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೇ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೊಡೆದವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪೈಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಎದುರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದವ್ರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿರೋದು. 4 ಜನ ಇದ್ದರು. 2 ಕಲರ್ ಸ್ಟಾರ್, 2 ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೋ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ 5:30ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. 6 ಗಂಟೆ ಅದೇ ದುರ್ಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋ ಯಾವ್ದಾರಿಗಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡು ಸರ್. ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವನು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅವರು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅವರು. ಇದು ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ 24 ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರು, 20 ಕಡೆ फ़ोन ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. मेरा नाम सैयद हिदायत कर को, इनका छोटा भाई।
इनको जीप में डाल लेते क्या मानिच उनका मुरीक दुकान का छोकरा देखो मुझे फ़ोन करा 9:40 को करेक्ट तेरा भैया को कौन की लालेक जा रही है देख जीप में एक है लारी ड्राइवर को तो कौन ना वो पाल टांगल टाइम लालेक जाएंगे छोड़ ड्राइवर को बोल को मैं डिले करा ज़रा बाद में उन्हें बोला नहीं रफ एंड टफ कर रहे थे घसीटाता नहीं कर रहे थे कहते देख कहते मान मैं जल्दी स्पॉट में भक्काया मैं आपको हमारे भैया गोरे भैया को स्टेशन का तो 2 स्टेशन आए समझना जमते सो होल्टन एक उस्मान एक 2 स्टेशन को भी इंक्वायरी जाब है ज़रा मैं तक उन्हें जाको इंक्वायरी कर लगा स्टेशन में भी नहीं था बट स्टेशन में भी गया नहीं ना और बोल को वहाँ का CCTV कैमरा था कार्ड ले जाको उस्मान स्टेशन को जमता वो पॉइंट वहाँ जाको कंप्लेंट लिखो दिए ऐसा देखो ऐसा भैया को घसीट लग गई कौन किधर करने का हम ना मालूम नहीं ज़रा इंक्वायरी करो ओवर को पूरा टाइपिंग गिपिंग पूरा उन्होंने कर ले उन्होंने राइटिंग में पूरा लिख ले को है ना तेरह ओवर को सुबह के 11 को जागो बैठे सो 4 घंटे अंत का क्या भी रिस्पॉन्स करे ने हमें पूरी जगह CCTV गाड़ी कहाँ सी गई वो पूरी CCTV हमें रिकवर कर डाले उन्होंने करने का काम हमें कर डाले अनाउंसमेंट देवगर को बोल को हमें ज़रा पूछने से ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ फ़ोन ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ करको बोले ಅವನು बाद हमें आए सो आधे घंटे में बाद भैया फ़ोन करे ऐसी जगह हूँ आओ करको बोल को फ़ोन करे बाद मैं भी उनके दोस्त निकल को जाको बाद वह स्टेशन को गए वहाँ दुर्ग के स्टेशन को जाको हमें भी क्या पूछे सर ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ सर ಅವನು लारी ड्राइवर 108 फ़ोन बरतावे हमारा पूरा बायोडाटा उनके पास है हमें जाको हमें क्या भी उनको बायोडाटा देना अगर को क्या भी ना है हमारे पूरे भाइयाँ से ले को हमें कोसको से कोने को जाती हैं कोसको से कोने से आती हैं हमें पूरी लिस्ट ही चुनकने है वैसे में भी उनको ले लगा को इनको मुश्किल दी इनको और वो बोल रहे हैं FIR हुआ नहीं सो मैं पूछा मैं FIR हुआ नहीं बगैर तुम्हें कई बुला लेकर आए और छोड़े सो गई कोई FIR हुआ तो छोड़ने का रेट सीट नहीं है ना तुमने कहे उनको सभी स्टेशन बेल में ही सुनो और माल भी रिकवर भी हुआ सब भी हुआ और हम ना इधर से उधर से हम ना मुश्किल दे रही सो इनो हम ना भाइयों को ये पूरे बैठले को इनो खिला ले बैठी सी ये माल का पार्टी ट्रांसपोर्ट वाला इनो सब भी है ना इनके भाइयों पकड़ो करने की एक बात को भाइयों को टारगेट कर रही हैं भाइयों ने आज को भी बोलता हूँ भाइयों ने पिन टू पिन 1 रुपये का एविडेंस रहेगा तो हमें 3 भाइयाँ नलडा घाट को डाल दी 3rd क्लास धंधा नको हम ना उन कुछ पकड़े ने अब भईच कर को 4 महीने भई आरोपी कर को बोल डाली इनो भईच कुछ इनको 4 महीने सिंह के डिपार्टमेंट भई कुछ पकड़ी नहीं चुप का हम ना पकड़े जाको फ़ायदा उठा रही हैं अब डिपार्टमेंट हमारे शिमोगा भद्रावती डिपार्टमेंट हमें देखे जैसा नितिन सेकंड में ढोले गाड़ी से देख रही हैं हमें 4 महीने हुआ 4-5 महीने हुआ आज को भी हमारा भाई क्या ज़िंदा है या मरा हमें आज को भी स्टेशन को भी पूछने गए ने इनको भी पूछे ने लाहरी के होनर को भी हमें पूछे ने कराया रहेगा हुआ हमें क्या करेंगे बोल को हमें डिले कर रही हैं जरा तो आरोपी का नाम है सैयद अशफाक यहाँ कंप्लेंट लिख को देखो ही अनाउंसमेंट देने उन्होंने आज भी हमें भी आज गए नहीं जरूरत इनको रहती इनको दिखाई तक रहती है बहुत टाइम होगा कल रात से भी उनके पीछे हैं सो और उनको कार में बुला लेगा स्टम्पो भी बहुत टाइम का तो बहुत टाइम ले उनको यहाँ बुला लेगा था ये गड़ा को देती नहीं पूरे अंदर के मारा पड़ी पूरे स्कैनिंग पूरे हो को ही सैयद हिदायत हमें भद्रावती के पुलिस स्टेशन को जाकर थे उन्होंने क्या भी रेस्पॉन्स लिए ने ऐसा हमारे नौशु को बुला ले जा को भल्ला का टॉर्चर कर को ही कौन कर को बोल को हम ना मालूम नहीं बाद में बोले पुलिस वाले कर को बोल को चित्तलदुर्ग से हमें आको ही कर को बोल को बोले शिमोगा की पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट देने ये कर ले को ही SP साहब से ये कर को ही कौन दुर्ग की पुलिस वाले ही उनके आप पर एक्शन ले को करती कर को बोल को क्या तो भी ऐसा कर को भेजी ना क्या तो भी कमी पेशी होती तो हमें कान जाना था हमारे बच्चे कान जाना था अंदर के मारम करते हैं कितने थे पुलिस वाले तो कलर ड्रेस में 4 जने एक डबल स्टार
ನಾ ದುರುಗೊಲೆ ಫೋನ್ करे ಸೊ ಐಸಾ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ ಅಶು ಅಂತ ಅಂದವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದು। को बोल को इनको बुला ले चलेगी, बुला ले गए के बाद में हमने मालूम हुआ सो ऐसा पुलिस वाले इसको बाद में हमें गए इन्हों फ़ोन भी करे नहीं, हमने क्या भी बोले भी नहीं। हमें सुबह को हमें बोले जाको ऐसा मिसिंग कंप्लेंट उनका छे कुछ है बाद में देतूंगे बाद में ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು बोले आए तो थोड़े सर आने से आधे घंटे में फ़ोन आया भैया का अच्छी जगह हूँ आओ लाले जो बाद में भैया जाओ लाले बैठ बात आने टाइम को पूरा सुस्त हो जाते कार में छूना फुल इसके लिए आप कुछ लगा हो रहा है सबमिट कर देंगे। कर्नाटक पुलिस की डीजीपी सलीम अहमद ने कर्नाटक की पुलिस को इस बात की हिदायत दी है कि वो किसी भी हाल में किसी भी तरह के कानून को ना तोड़े, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कर्नाटक की पुलिस इस वक्त कर्नाटक को उत्तर प्रदेश को बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, एक ऐसा वाक़या यहाँ पेश आया है शिवमोगा के भद्रावती शहर में, जहाँ पर चित्रदुर्गा की पुलिस ने भद्रावती के एक नौजवान को बगैर किसी कसूर के अगवा किया और उसकी पिटाई की। इस कदर पिटाई की कि उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है और वो अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। सवाल ये है कि पुलिस महकमा किसी भी शख्स को बगैर किसी कसूर के किस वजह से अगवा कर रहा है। चित्रदुर्गा की पुलिस जब शिवमोगा ज़िले पहुंचती है तो उसे मुकामी पुलिस को इतला करनी पड़ती है, बाकायदा नोटिस या समन जारी करना पड़ता है। इसी तरह से जिस शख्स को वो पूछताछ के लिए तहवील में ले रहे हैं उसके अहले खाना या घर वालों को इतला देनी होती है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह के क़ानून की पासदारी नहीं की गई है, बल्कि क़ानून को तोड़कर एक शख्स को अगवा किया गया। और उस अगवा करने वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि इसका भाई किसी एक मामले में मुलजिम था। इसी पूछताछ के लिए चित्रदुर्गा की पुलिस ने शिवमोगा के एक नौजवान को अगवा करते हुए उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अब इस मामले में न सिर्फ महकमा पुलिस जवाबदाह है, बल्कि वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री भी जवाबदाह है कि कैसे कर्नाटक की पुलिस इस तरह की कामों को अंजाम दे रही है। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा।